With me, wanna see what you see, wanna hear from your heart. We're in this thing together, together we'll be stronger than we ever could dream. We're in this thing together. Together we're whole. Never alone. Together we'll stand. We're in this thing together. We're in this thing together. હલો, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. ગુજરાત સાયન્સ સિટીના ફેસબુક પેજ ઉપર આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બધા જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે બધાએ આજે વર્તમાનપત્રોની અંદર સમાચારની અંદર વાંચ્યું હશે કે આજે વર્લ્ડ કેન્સર ડે 4 ફેબ્રુઆરી એટલે વર્લ્ડ કેન્સર ડેની ઉજવણી થઈ રહી છે. એટલે એકચ્યુઅલમાં ઉજવણી તો આપણે એને કહી શકીએ વર્લ્ડ કેન્સર ડે નિમિત્તે, પણ એની હિસ્ટ્રીમાં એવું છે કે વર્લ્ડ કેન્સર ડે સૌ પ્રથમવાર વર્ષ 2000ની અંદર પેરિસની અંદર પ્રથમવાર એની ઉજવણી થઈ હતી. આપણે બધા જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે એક આપણી જે કહેવત છે કે ઈલાજ કરતો સાવચેતી સારું, એટલે પ્રિકોશન્સ ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર. તો કેન્સરનું નામ પડે એટલે બધાને એવું થાય કે ભાઈ જીવલેણ રોગ છે, પણ એ કેન્સર માટે આપણે શું પગલાં લેવા જોઈએ અને એનાથી આપણે કઈ રીતે બચી શકીએ, તો એના માટે એક અવેરનેસની જરૂર છે, એક સાવધાની જોઈએ, અને એના માટે આપણે એનાથી બચવા માટે શું કરી શકીએ એ જાણવું બી જરૂરી છે. તો આ માટે આજે આપણે વિશ્વ કેન્સર દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત સાયન્સ સિટી થકી આપ એની ઉજવણી નિમિત્તે જાણીશું કે કેન્સર માટે શું સાવધાની રાખવી જોઈએ, એ કઈ રીતે કેન્સર કઈ રીતે થઈ શકે છે, એનાથી બચવા માટે શું કરી શકીએ. એક જાગૃતતાની લોકજાગૃતિની જરૂર હોય છે. તો આ માટે આજે સાયન્સ સિટી તરફથી એક આ અવેરનેસ સેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને આજના એક્સપર્ટ તરીકે
શ્રી ડૉક્ટર ચૈતન્ય ઝા સર છે. અને સર વેલકમ. સાયન્સ સિટીના નમસ્કાર. ફેસબુક સોશિયલ મીડિયા પર આપનું સ્વાગત છે. સરની ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહીએ તો સર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માઇક્રોબાયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ, ગુજરાત આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ. અને સર માઇક્રોબાયોલોજી એટલે કે એમને 18થી વધારે ઇન્ટરનેશનલ રિસર્ચ આર્ટિકલ પબ્લિશ કરેલા છે અત્યાર સુધી. એમની લગભગ 4 જેટલી બુકો છે રિસર્ચ ગાઈડ અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ ગાઈડ તરીકે સરની સાથે લગભગ 3 સ્ટુડન્ટ પોતે રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. તો અને સર ખૂબ સારા સાયન્સ કોમ્યુનિકેટર છે. તો આજે સરને આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે વર્લ્ડ કેન્સર ડે નિમિત્તે એક સારી આપણી જોડે એક અવસર છે, તો સરને સાંભળીએ. સર પ્લીઝ. ધન્યવાદ પુલકેશ પ્રજાપતિ સાહેબ. થેન્ક યુ. મને એવું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવ્યું છે કે આજની જે ભાષા છે ટોકની એ થોડીક નોર્મલ અથવા રેગ્યુલર રાખવાની, જેમ કે તમને પીપીટી દેખાશે ઇંગ્લિશમાં, પણ હું જ્યારે ટોક કરીશ ત્યારે હિન્દી અને અંગ્રેજી બંને મિક્સ કરીને કરીશ અને કોશિશ કરીશ કે તમારી પાસે એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં કેવી રીતે સમજણ પહોંચે. એટલે કેન્સર શું છે, ટાઇપ્સ ઓફ કેન્સર શું છે અને કેવી રીતે પ્રિવેન્શન કરી શકીએ, હું ટોક એવી રીતે રાખીશ. અને એવી રીતે ટોક રાખીશ કે જે નોન સાયન્ટિફિક બેકગ્રાઉન્ડના પર્સન હશે એ બી શાંતિથી સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં અથવા જો કોઈ સ્કૂલ સ્ટુડન્ટ હોય તો પણ સમજી શકે છે. એવી રીતે હું ટોકની ભાષા રાખીશ. હું વધારે હિન્દી અને અંગ્રેજી યુઝ કરીશ. બહુ બહુ ધન્યવાદ મને ચાન્સ આપ્યું ગુજરાત સાયન્સ સિટી તરફથી લેક્ચર આપવા માટે. અને હું ભરસક પ્રયાસ કરીશ કે આ અવેરનેસ આઈ વિલ બધા પાસે પહોંચે અને બધા પાસે અવેરનેસ હોય કેન્સર વિશે. હું પ્રેઝન્ટ કરું છું. आपको वाईफाई कर दीजिए. Come walk with me. Wanna see what you see. Wanna hear from your heart. We're in this thing together. Together we'll be stronger than we. મેં પ્રેઝન્ટ કર્યું છે સર. હા ઠીક છે સર. એક જ મિનિટ. સર પ્લીઝ ગો હેડ સર. પ્લીઝ સર. સ્ક્રીન ચેન્જ થાય છે? હા સર, વિઝિબલ સર. પરફેક્ટ સર. Okay, okay, okay. So, before starting about the precautionary prevention measure, हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंसर है क्या, किसको है. अगर आप ये समझ जाएंगे तो अवेयरनेस यही से स्टार्ट होती है कि कैंसर डिजीज है या है क्या. If we will start, there are 200 different types of cell in our body. हमारे बॉडी के अंदर 200 अलग प्रकार के सेल हैं. अगर आप मेजर करोगे तो अराउंड 50 ट्रिलियन टू 70 ट्रिलियन सेल्स हैं. अगर आप 200 टाइप्स में से कुछ सेल का एग्जांपल लेना चाहो, जैसे रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, कोलोन सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं, एंड एवरी सेल, जितने भी सेल हैं, एवरी सेल हैविंग देयर लाइफ स्पैन. हर सेल का एक लाइफ स्पैन. जैसे इफ आई एम गिविंग वन एग्जांपल,
Hello. Yes, sir. Yes, sir. If I- Continue. If I'm giving one example, like red blood cells that live for about 4 months. अगर हम white blood cell की बात करें तो ये एवरेज more than a year. स्किन सेल की बात करें तो ये 2 to 3 weeks होता है. न्यूरॉन सेल, ब्रेन सेल typically last an entire lifetime. But colon cell about for 4 days, sperm cell only about for 3 days. मेरा ये कहना है कि जो जनरल सेल है वो बनते हैं, उनका एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटरी मेटाबॉलिज्म होता है, उनका सेल डिवीजन कंट्रोल्ड होता है और प्रॉपर वे में होता है हर चीज. सो आफ्टर द लाइफ स्पेन हर सेल डेथ हो जाती है, हर सेल की एक डेथ होती है. मतलब उन्होंने एक सेल बना, फॉर्म हुआ एंड आफ्टर द प्रॉपर लाइफ स्पेन, जैसे आफ्टर 4 months के बाद रेड ब्लड सेल की डेथ होती है. द प्रॉपर वे, सब कुछ प्रॉपर वे में सेल फंक्शन कर रहा है. The word which is used is called apoptosis. That is called programmed cell death. Cell which is formed, newly cell formed, and old cell die after a regulatory metabolism, after a functions or after the cell division. Normal cell division में ऐसा होता है. Every cell functioning after few hour, after few function, after that time interval, they will death. The terminology used is called apoptosis. या उसको आप प्रोग्राम सेल डेथ कह सकते हैं, या उसको आप कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स जेनेटिकली डिटरमाइंड एलिमिनेशन ऑफ द सेल्स. ऐसे सेल जो पुराने हो गए उनका जेनेटिकली एलिमिनेशन हो जाता है. या फिर उसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं आप कि apoptosis occurs as a defense mechanism. That is such as immune reaction when the cells are damaged by the disease और बाय द नॉक्सियस एजेंट के कारण अगर सेल का डैमेज होता है तो सेल की उसके बाद डेथ होती है. दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ. अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो नॉर्मल सेल का डिवीजन देखो. आफ्टर प्रॉपर लाइफ स्पेन द सेल डैमेज और द सेल का डेथ होता है. दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस. जो इमेज है, नीचे इमेज देखो. व्हाट अबाउट कि अगर सेल की डेथ ही ना हो, मतलब जिस सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यू सेल आपको चाहिए नहीं, एंड कंटिन्यूअसली देयर इज न्यू सेल प्रोड्यूसिंग. तो द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है सेल का. कोई मेटाबॉलिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म लॉन्च हो गया है एंड सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है. so there is no break on the cell division. So agar first mutation, second mutation, third mutation, fourth mutation, lateral mutation, and cell is continuously divided. When the cell is continuously divided without a break, it will convert it into a lump. It will convert it into a tumor, and it is finally as a disease that is called cancer. The same, I was talking about the normal cells, normal body cells that grow, divide, and die in an ordinary fashion. But the cancer cells are different. They're different because they do not die. वो मरते नहीं है. They are just continue to grow. They are just continue to divide. Continuously divide हो रहा है in the disorder fashion. Normal cell in the order fashions and disorder fashion में cancer cell divide होते हैं. So अगर आप कैंसर को डिफाइन करेंगे तो कैंसर कैन बी डिफाइन इज अ डिजीज when the cell grow out of control and invade and erode and destroy the natural tissues. So cancer cells do not have this programming, that therefore they grow and replicate out of control. They also solve this no physiological function. These cells are now termed as neoplasm. And medically term में कैंसर is called the malignant neoplasm. मैं डिस्कस करूंगा कितने टाइप के कैंसर होते हैं, क्या मैलिग्नेंसी होता है, इसको मैलिग्नेंट बोलते हैं. So it is a broad group of disease that involving unregulated cell death, cell growth. So cancer is a term that is used to describe a large group of diseases that are characterized by the cellular malfunction. That is, healthy cells are programmed and the cancer cells doesn't having any program. But healthy cells are know what to do and when to do. But the cancer cell doesn't do because they have lost their regulatory mechanism. So ये आप देख सकते हैं how the normal cell and cancer cell are different from each other. After you can say the cell continuously divided, they have lost their regulatory mechanism. ट्यूमर क्या है? A tumor, जैसे मैंने कहा कि वो लंप में क्रिएट होता है, then lump is converted into cancer. मैं इसके बारे में एकदम सिंपली भाषा में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको कि क्या ट्यूमर होता है, कितने टाइप के ट्यूमर होते हैं, आपको कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझे कैंसर हो सकता है या मेरे अंदर कोई ट्यूमर जनरेट हो रहा है, अगर वो विजिबल हो तो.
So a tumor is actually develops when cell produce too quickly, continuously, quickly develop, cell reproduce हो रहे हैं. So tumor can vary in their size में vary कर सकते हैं. Tiny nodules हो सकते हैं to a large mass हो सकते हैं, depending upon their types, and they can appear almost anywhere on your body. Body के किसी part में develop हो सकते हैं. तो ट्यूमर को आप डिफाइन करेंगे, ट्यूमर इज अ मास or you can say a lump of the tissue that may resemble swelling. Not all tumors are cancerous, but it is you can say it is a good idea to see a doctor if a tumor appears. According to the National Cancer Institute, that define that an abnormal mass of the tissue that results when the cell divide more than they should, जितना उसको होना चाहिए उससे ज्यादा कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, देन यू मस्ट हैव टू सस्पेक्ट अबाउट देयर इज अ ट्यूमर. इन अ हेल्दी बॉडी में क्या होता है, सेल ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं एंड रिप्लेस करते हैं ईच अदर को, न्यू सेल फॉर्म होते हैं एंड ओल्ड सेल डाई होते हैं. व्हेन अ पर्सन हैज अ कैंसर, द न्यू सेल फॉर्म कब बनता है, न्यू सेल व्हेन द बॉडी डजंट नीड देम, तभी नया सेल फॉर्म हो रहा है. इफ देयर आर टू मेनी न्यू सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, then a lump generated, a lump created, and this is called that is developed into a tumor. वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है. There are some tumors अलग अलग टाइप हो सकते हैं. There are some maybe benign हो सकते हैं, some are pre-malignant हो सकते हैं, they are malignant हो सकते हैं. So मैं आपको ट्यूमर के टाइप्स बताता हूँ कैसे होता है. मैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रहा है, this is a benign type of tumor. मोस्टली मैं आपको बता दूं कि बिनाइन एंड प्री मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, दे आर नॉट येट कैंसरस, बट द मैलिग्नेंट इज एक्चुअली द कैंसरस ट्यूमर. द बिनाइन टाइप ऑफ जो ट्यूमर है, दे आर नॉट कैंसरस एंड आइदर कैन नॉट बी स्प्रेड. स्प्रेड नहीं हो सकता बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है उसका, बट दे डू ग्रो वेरी स्लोली, हो सकते हैं. बट इट इज एडवाइजेबल दैट द डॉक्टर्स, आप डॉक्टर को कंसल्ट करें. द डॉक्टर्स कैन रिमूव इफ डू नॉट जनरली, अगर आप नहीं चाहते हैं तो, बट दे आर नॉट कैंसरस. बट एक पॉसिबिलिटी है कि बिनाइन ट्यूमर भी प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ट्यूमर सस्टेन करता रहता है तो मे बी द बिनाइन ट्यूमर में बी कन्वर्टेड वन डे इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर. Second part, pre-malignant tumor क्या है? In the pre-malignant tumor, you can say in this tumor, the cells are not yet cancerous, but they have the potential to become malignant. वो कभी भी convert हो सकता है cancerous में. But the third part, that is called the malignant tumor are always cancerous. The cell that can grow, that can spread to the other parts of the body. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड हो सकता है and बड़ा फास्ट स्प्रेड होता है. So it is not always clear that how a tumor will act in. अगर आपका है कि आपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया है और डॉक्टर कहता है कि this is a benign tumor, you must have to remove them because some benign tumors can become pre-malignant and malignant for this reason. So it is best to monitor their growth and remove them. थोड़ा एग्जांपल बात करते हैं कैसा कौन कौन से होते हैं बिनाइन ट्यूमर, किसको कौन कौन से होते हैं, प्री मैलिग्नेंट की कौन कौन से होते हैं, मैलिग्नेंट की तो बहुत सारा है, लेकिन मैं उसमें से दो चार एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तीनों के. बिनाइन ट्यूमर क्या है? मोस्ट बिनाइन ट्यूमर्स जो हैं दैट आर नॉट हार्मफुल. जैसा मैंने बताया, दे आर नॉट कैंसरस ऑन द फर्स्ट स्टेज. सो द मोस्ट ऑफ द बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट हार्मफुल and they are unlikely to affect the other parts of the body. दूसरे पार्ट को अफेक्ट भी करेगा, वो जिस पार्ट के वहीं तक सीमित रखेगा. So they can cause pain, आपको दर्द हो सकता है, and other problems create हो सकते हैं if they press against the nerve cells, or you can say the nerve blood vessels, or if they are triggered to the overproduction of hormones. कोई करने लगता है overproduction किसी हार्मोन का होने लगे, as in the endocrine system. There are certain example. अगर आप बिनाइन ट्यूमर के certain example रखोगे, तो जैसे मैंने एक example रखा, जैसे adenomas. That adenomas are that develop into the, you can say, epithelial tissues में develop होते हैं. Most of the adenomas, which is in the thin membrane that covers the glands, organs and other structure in the body. जैसे examples ले लो आप, polyps in the colon,
fibroadenomas, a common form of benign breast tumors होते हैं. Hepatic adenomas, which liver के अंदर होते हैं. That adenoma is not a cancer. But somehow, however, some adenomas can change and become adenocarcinomas, which may be a cancer. Second, दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे फाइब्रोइड्स. जो फाइब्रोइड्स हैं या फाइब्रोमास है आर द बिनाइन ट्यूमर्स दैट कैन ग्रो ऑन द फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू. आप कह सकते हैं एडिनोमास किस पे ग्रो हो रहे थे, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज पे. अगर आप फाइब्रोइड्स की बात करते हैं, दे आर ग्रोइंग ऑन द कनेक्टिव टिश्यू. तो एनी ऑर्गन, बहुत सारे टाइप्स हैं. एक दो टाइप आप देख लो, जैसे एंजियो फाइब्रोमास है या उसको एंजियो फाइब्रोइड्स कह सकते हैं. ये क्या है, दैट एंजियो फाइब्रोइड्स जो है दैट अपीयर्स स्मॉल रेड बम्प्स ऑन योर फेस, आपके फेस के ऊपर होता है. और दूसरा जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, डर्मेटोफाइब्रोमास. डर्मेटोफाइब्रोमास क्या है, दैट अपीयर्स ऑन द स्किन के ऊपर जनरेट होता है, दैट ऑफन ऑन द लोअर लेग्स के ऊपर. Some fibroids you can say that can cause symptoms and may need surgery. सर्जरी से आप उसको रिमूव कर सकते हो. But in rare cases, if this fibroids that can change and become fibrosarcoma, then there is a chance of cancer. So the third is called hemangiomas. Hemangiomas क्या है? Hemangiomas are benign tumors and that form when the blood vessels grow excessively, and they can appear as a red strawberry marks on the skin के ऊपर ही होता है, or they can develop inside the body. But they are often present at the birth and disappearing during the childhood. So hemangiomas do not usually need any treatment, but अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप लेजर सर्जरी करके उसको, and other options are available, आप उसको रिमूव कर सकते हैं. The fourth जो इमेज में आपको दिख रहा है, लिपोमास. That lipomas are often a soft tissue tumor होता है, that consist of fat cells उसके अंदर होते हैं, and they can occur at any age, but often 40 से 60 साल के लोगों को होता है. And according to American Academy of the Orthopedic Surgeons, अगर आप देखेंगे, they note down that they are unlikely to become cancers. So most of the lipomas जो होते हैं, they are small, painless, रबर के जैसा होता है, रबरी, and soft to touch and movable, मूव करता है, होता है. आपको देखने को मिला होगा आसपास अपने किसी फ्रेंड या मेंबर के पास ये होता है. बट दे ऑफन अपीयर ऑन द बैक, शोल्डर के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, बटक के ऊपर, एंड द टॉप्स ऑफ द लेग्स के ऊपर. सो दे आर नॉट कैंसरस, बट द टाइप्स ऑफ द लिपोमा that include the fibrolipomas, which contain the fat cells and the fibrous connective tissue, and the angiolipomas, which can appears under the skins. So these are this is a benign type of tumor, and lipoma is not cancerous. जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि benign tumor type of tumor and pre-malignant type of tumor is not yet cancerous, but it may be converted into the malignant during the course of time. दूसरा टाइप है that is called pre-malignant. The pre-malignant, this type of tumor is not cancerous, but it needs a close monitoring in case it changes. अगर फास्ट चेंज हो रहा है तो ये पॉसिबल है that the pre-malignant tumor can be converted into the malignant tumor. So it's needed monitoring. उसके भी मैंने 2-4 एग्जांपल रखे हैं. जैसे वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिनिक केराटोसिस. इसको हम सोलर केराटोसिस भी कहते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द पैचेज ऑफ द क्रस्टी स्केल जनरेट होता है, स्केल की तरह स्किन के ऊपर स्केली एंड थिक स्किन जो है वो ठीक हो जाता है. एंड इट इज मोर लाइकली to affect the fair skinned people, and sun exposure increase in the risk. मैं sun exposure के बारे में बात करूंगा कैसे वो affect करता है UV radiation. So sometimes actinic keratosis that will transform into squamous मतलब होता है scaly cell, scaly हो जाते हैं cells that is called carcinoma. So doctor usually recommend treating it. That is called actinic keratosis. The second is called cervical dysplasia.
मोस्ट कॉमनली जो सर्वाइकल डिस्प्लासिया होते हैं वो ऑफन इन्फेक्शन वायरस के इन्फेक्शन के हिसाब से होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. सो इन द सर्विकल डिस्प्लासिया अ चेंज अकर होता है इन द सेल्स दैट लाइन द सर्विक्स. सर्विक्स के ऊपर जो लाइनिंग होते हैं, डॉक्टर मे फाइंड दिस सेल्स ड्यूरिंग अ पैप स्मीयर. पैप स्मीयर क्या होता है, और उसके बारे में हम बात करें कि व्हाट इज पैप स्मीयर. पैप स्मीयर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द collecting cells from the cervix, or you can say the lower and the narrow end of the uterus, but at the top of the vagina. वहां से जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, that is called pap smear, and we are doing a pap test. Pap test is a procedure to test for the cervical cancer in the women. तो जो pap smear है, that show a change in the cervix. So the cervical dysplasia, जैसा मैंने बताया कि it is caused due to the infection of the virus, that is human papilloma virus, an infection that is common in the young people. The cells that are not cancerous, but they may become malignant after time period, that is 10 से 30 साल का ड्यूरेशन, अगर लंबा ड्यूरेशन है तो ये मे भी कैंसर हो सकता है, रिजल्टिंग इनटू द सर्विकल कैंसर. तो सर्जन रिमूव कर सकते हैं सेल्स यूजिंग द फ्रीजिंग टेक्निक्स और बाय टेकिंग अ कोन ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द सर्विक्स. उसको मतलब रिमूव किया जा सकता है सर्विकल डिस्प्लासिया. द थर्ड इज कॉल्ड मेटास्प्लासिया ऑफ द लंग. These growth occur in the bronchi, the tubes that carry air into the lungs. So the lining of the bronchi that contains glandular cells, and in some people, including smokers, जो लोग smoking करते हैं, these can change from become squamous cells. Scale बन जाता है उसके ऊपर, and it sometimes if we convert it into the malignant, it will be cancerous. The fourth one. I have taken 4 examples. So the fourth one is called leukoplakia. Leukoplakia क्या है? Leukoplakia that causes thick white patches to form, that is formed inside your mouth. Mouth के अंदर most commonly जो लोग smoking करते हैं या tobacco use करते हैं, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है. And these patches inside the mouth, they are painless, have irregular shape and slightly raised. थोड़ा सा उठा हुआ होता है and are not possible to scrape off. If you talk to your doctor and the doctor believe that the patches could become cancerous, अगर उनको लगता है कि ये बाद में malignant हो सकता है, cancerous हो सकता है, they may use a laser or surgical scalpel to remove them. उसको remove किया जा सकता है. The third part is called malignant. Malignant tumors are cancerous. जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरा टाइप का ट्यूमर है मैलिग्नेंट, वो कैंसरस है. एंड दे डेवलप व्हेन द सेल्स आर ग्रो अनकंट्रोलेबली. अनकंट्रोलेबली मतलब दे हैव लॉस्ट their control by the DNA. They have lost their regulatory mechanism. They have lost their functions. They have lost their regulatory in the terms of the production of the protein as well as other functions which is take place inside the cell. They have lost the control of the cell division. Cell division का control lost हो गया. So if the cell continuously grow and spread, the disease can become life-threatening. Malignant tumors that can grow quickly and spread to the other parts of the body. आप समझो कि हुआ लंग में है, लंग कैंसर है और वो स्प्रेड होकर लीवर तक पहुंच गया. So the malignant tumor can spread to the other parts of the body, and the process of this spreading is called metastasis. So the cancer cells that move to the other part of the body are the same as the original ones, but they have the ability to invade other organ. है वही जो liver lung cancer था, but they have ability to invade other organs. So जब ऐसा example लिखा कि if the lung cancer that is spread to the liver, so the cancer cell is in the liver are still lung cancer. So है लंग कैंसर का सेल और वो स्प्रेड होकर लीवर तक पहुंच गया. So malignant tumors can spread to the other parts of the body by the process that is called metastasis. There are different types of malignant tumor that originate into the different types of cell.
फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे कार्सिनोमा है, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, सार्कोमा है दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज से ओरिजिनेट होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर है जनरली ओवरीज एंड टेस्टिकल्स से ओरिजिनेट होते हैं, ब्लास्टोमा है दैट इज एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से ओरिजिनेट होते हैं। सो कार्सिनोमा क्या है? सो दीज ट्यूमर्स फ्रॉम यू कैन से कहां से बनते हैं? एपिथेलियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्किन and the tissues that covers, or you can say the lines of the body's organs. So carcinoma can occur कहाँ कहाँ हो सकते हैं? स्टमक में, प्रोस्टेट में, पेनक्रियाज में, लंग्स में, लिवर में, कोलोन में, ब्रेस्ट में. They are common type of malignant tumor that is called carcinoma. But the sarcoma, these tumor that start into the connective tissue and such जैसे कार्टिलेज के अंदर, बोन्स के अंदर, फैट एंड नर्व्स के अंदर, एंड दे ओरिजिनेट इनटू द सेल आउटसाइड द बोन मैरो. मोस्ट सार्कोमा आर मैलिग्नेंट होते हैं. जर्म सेल ट्यूमर, these tumors that develop into the cell that produce sperm and eggs, and they are usually occur into the, जैसे मैंने बताया, ovaries and testicles में. But they may also appear into the brain, abdomen. मैंने पहले बता दिया कि मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस वेयर द मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कैंसर वही का वही रहेगा. लंग कैंसर स्प्रेड टू द लिवर, द कैंसर सेल इन द लिवर इज स्टिल द लंग कैंसर सेल. So the germ cell tumor can also spread to the brain, abdomen and chest. Blastoma, these tumors from the embryonic tissues, or you can say developing cells. Blastoma are much more common into the children than in adults, and they can lead to the tumor in the brain, eye, and the nervous system. So, in fact, अगर आप कॉमनली कहोगे तो मैंने आपको ट्यूमर के बारे में 3 टाइप के ट्यूमर बताए. एक, मैंने पहले आपको बताया कि बिनाइन ट्यूमर, इट इज नॉट कैंसर बट मे फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम अगर आप रहेगा वो तो कन्वर्ट हो सकता है मैलिग्नेंट. मैंने दूसरा बताया आपको प्री मैलिग्नेंट, इट इज ऑल्सो नॉट येट कैंसर्स बट इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द मैलिग्नेंट और द कैंसर्स. बट द carcinoma, sarcoma, या germ cell tumor, या blastoma, they are malignant, and the malignant tumors that can spread very fast, they are grow very quickly, and they are actually the cancer cell. तो अगर आप जनरली बात करोगे, एक समराइज में है कि द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दैट आर स्प्रेड टू द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी, बट द बिनाइन ट्यूमर स्टे इन द वन प्लेस, एक ही जगह पर रहता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होता रहता है अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का रैपिड ग्रोथ होगा और बिनाइन का स्लो ग्रोअर्स होंगे. एंड द नेचर ऑफ द ग्रोथ दैट इन्वेड्स द सराउंडिंग टिश्यूज, मैलिग्नेंट ट्यूमर में हम बात कर चुके हैं, एंड बिनाइन ट्यूमर में दैट इज एक्सपांड इनटू द सेम टिश्यूज. लास्ट में आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि डू ऑल द कैंसर इन्वॉल्व अ ट्यूमर? ऐसा हो सकता है क्या कि सारे कैंसर ट्यूमर हो? ऑफ कोर्स यस. आपके दिमाग में एक दूसरा पोर्शन भी आएगा कि ऑल कैंसर that involves some form of the solid or the liquid tumor. सॉलिड के बारे में हमने अभी बहुत सारी बात की, जैसे मैंने बताया आपको सॉलिड ट्यूमर that get your names, sarcoma है, कार्सिनोमा है, लिम्फोमा है. So they are in the terms of a solid mass के रूप में जनरेट हुए. What about the liquid? You can say the mass tissue does not include the liquid ACR in the solid tumor, but some types of cancer, for example leukemia, which is a cancer of the blood, that do not form any solid tumor, but this is also a type of cancer. So the question आपके दिमाग में आया होगा कि do all the cancer involve a tumor? Obviously yes. Now awareness है तो मैंने आपको पहले ये सिखाया कि ट्यूमर होता क्या है, कैंसर क्या होता है. बट मैंने आपको जब पहला स्लाइड बताया तो आपको कहा कि जो नॉर्मल सेल होते हैं उनका एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, उनका कंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, उनका एक कंट्रोल टाइम के बाद, एक लिमिट टाइम के बाद उनकी डेथ होती है, सेल डाई होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, ओल्ड सेल डाई होते हैं. मैंने आपको सिखाया. बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो कैंसर सेल होता है उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं. तो ये एक डिजीज है. बट अगर मैं एज ए साइंटिस्ट, मैं एज ए प्रोफेसर मैं आपको कहूं कि सबसे ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने में सबसे ज्यादा ये ट्यूमर सेल का यूज होता है. साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ड्रॉबैक है, जो गलत है, जो डिजीज है कि ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, तब तक आपके शरीर के अंदर है तब तक डिजीज है. साइंटिस्ट ने वो सेल जो ट्यूमर सेल हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली आपके शरीर से निकाल कर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप किया. वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी मैं एक लाइन आपको कहता हूं कि साइंटिस्ट हैविंग एबिलिटी टू यूज दैट सेल्स हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली टू डेवलप. आप समझ के देखो, फर्मेंटेशन जब हो रहा है, फर्मेंटर के अंदर हमको
जब सेल कंटिन्यूअसली फास्ट डिवीजन होगा, क्विक डिवीजन होगा, तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट गेन होगा. तो साइंटिस्ट यूजिंग दैट कैंसरस और ट्यूमर सेल्स ड्यूरिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन. वो दूसरे किसी टाइम पे बात करेंगे. So what are the factors that causing and increasing the risk of the cancer? The very first one is called genetic mutations. So mutations depending upon the types of mutagen, केमिकल म्यूटाजिन हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजिन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटाजिन हो सकते हैं, सम दैट क्रिएटेड म्यूटेशन इनसाइड द बॉडी. जैसे केमिकल म्यूटाजिन की अगर बात करो, मैं आगे बात करूंगा, जैसे बेस एनालॉग है, जैसे अल्काइलेटिंग एजेंट है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, जैसे डीएमिनेटिंग एजेंट है, जैसे मेटल आयंस है. दीज आर केमिकल म्यूटाजिन. अगर आप फिजिकल म्यूटाजिन के यूवी रेडिएशंस है, हीट है, ये सब म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं. बायोलॉजिकल म्यूटाजिन सबसे आजकल बहुत चल रहा है, वायरस इज अ बायोलॉजिकल म्यूटाजिन. और दूसरा बैक्टीरिया है, ट्रांसपोजोन्स है. दीज आर द म्यूटाजिन्स व्हिच क्रिएट दिस म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन मे लीड टू द कैंसर. लाइफस्टाइल ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा टॉपिक है, जो हम लास्ट में बात करने वाले हैं. व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक. लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्दी डाइट्स अगर आप यूज करते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है दैट कॉजिंग द रिस्क ऑफ कैंसर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट. समटाइम्स वी आर यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स दैट मे बी वी आर कमिंग इन कांटेक्ट विद सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स मे बी कार्सिनोजेंस, दैट इज कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं. ऑल्सो अफेक्ट पैथोजेंस, जैसे मैंने बात किया, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, sometimes other biological pathogen, fungals भी हो सकते हैं. Most commonly virus and bacteria. Other disease that may affect the cancer, that is called obesity, मोटापा जिसको आप कहते हो, डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेशन, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, अच्छी तरह काम नहीं करता है, that also may be a factor of causing a risk of cancer. What increasing the risk of cancer? जैसे मैंने बोला, some carcinogenic chemicals in the tobacco that जो लोग स्मोकिंग करते हैं, they are at the highest risk of the cancer. UV radiation, हम इसके बारे में बात करेंगे. UV radiation, how they affect. X-ray doses, that is atomic radiation, is also increases the risk of the cancer. Other inherent factors भी हो सकते हैं, that maybe some changes inside the gene, or you can say some spontaneous mutation that occurring inside your DNA. Some cancer linked viruses जो हो सकते हैं, वो क्रिएट करते हैं. वायरस का एक नेचर होता है, आप समझिए. That virus, when it inject the DNA inside the eukaryotic cell, that DNA is integrated inside the host genome. अगर आपके सेल के अंदर, आपका यूकैरियोटिक सेल है, आपके सेल के अंदर जब वायरस या बैक्टीरिया या कोई वायरस जो आपको डिजीज कॉजिंग वायरस है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करते हैं, जैसे ही वो आपको इन्फेक्ट करता है, दे इंजेक्ट योर डीएनए इनसाइड योर सेल. और आप समझो, मैं बार बार ये कहता हूं लोगों से कि दुनिया में सबसे चालाक अगर कोई लिविंग सिस्टम है, वो है वायरस. हमारे एवरी सेल, हर लिविंग सेल के अंदर एक सिस्टम होता है दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी आउटर बॉडी. कोई भी बाहर से वस्तु जब आपके सेल में आती है, तो आपके सेल के अंदर दो फंक्शंस होते हैं. एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो उसको एंटीजन समझ के एंटीबॉडी बनाता है, और दूसरा आपका जो डीएनए है और आपके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसके अंदर आपके सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं. अगर किसी ने गलती से अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया है, तो आपके अंदर एक स्पेशल टाइप अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोसाइड और एंडोन्यूक्लियोसाइड, दैट हैविंग एबिलिटी टू कट डीएनए, जो ब्रेक कर सकता है डीएनए को. बट वायरस ने अपना डीएनए इंजेक्ट किया, वो अपने डीएनए को इस तरह से मॉडिफाई करता है. मैं अभी जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा. वो अपने डीएनए को इस तरह से मॉडिफाई करता है कि जब वो अपना डीएनए इंजेक्ट करता है आपके सेल के अंदर, तो आपका सेल ये कंफ्यूज हो जाता है कि हम इसको कट करें कि ना करें. And then he cannot differentiate between their own DNA and जो बाहर से आया है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. और देन वो डीएनए, वो वायरस का डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनसाइड द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए, आपके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है. देन सीज योर ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी, दैट सीज योर ट्रांसलेशनल मशीनरी, और खुद से ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, एंड देन दे आर मेकिंग प्रोजेनी. मोस्ट ऑफ द कैंसर लिंक्ड वायरस होते हैं, दे आर प्लेइंग अ लाइसोजेनिक टाइप ऑफ पाथवे. तो प्रोफाज स्टेज में कंटिन्यूअसली रहते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे कन्वर्ट इनटू द लाइटिक पाथवे, दे विल बर्स्ट. सो वायरस का एक नेचर है दैट ऑलवेज प्ले इंसर्टिंग देयर डीएनए इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, एंड दैट डीएनए बिकम्स इंटीग्रेटेड इनसाइड द होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए. देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया आल्सो दैट कॉज कैंसर. मैंने बोला कि
वायरस कैसे काम करता है, दे आर व्हाट इंक्रीजेस द पीपल रिस्क ऑफ कैंसर में। दे आर सम वायरसेस, एग्जांपल लिखे हैं ना, टाइप्स ऑफ कैंसर, जैसे एप्स्टीन बार वायरस है, दैट इज कॉल्ड, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस है, दैट इज लीवर कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉफिक है। जैसे वायरस के टाइम पे मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जो आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, टाइप्स ऑफ कैंसर भी दिख रहा होगा। सो मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। एंड इनहेरिटेड कंडीशन दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट ऑन्कोजीन्स के बारे में हम बात करेंगे कि ऑन्कोजीन्स के बारे में बात करेंगे, उसकी स्लाइड है बाद में। व्हाट इज पॉइंट है, व्हाई द कैंसर स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द अर्ली कैंसर में नॉट हैव एनी सिम्टम्स, अगर नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट है टू गेट स्क्रीनिंग। तो मैं इस पॉइंट पे ज्यादा डील नहीं करूंगा, क्योंकि हमें जो टॉपिक दिया गया है, दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कैंसर। मैं आपको ये बताने मोस्टली ये बताऊंगा कि कैंसर के टाइप क्या है एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजरमेंट है। फिर भी ये थोड़ा सा ये पोर्शन, क्योंकि कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, ये वेरी वास्ट टॉपिक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्यूनोलॉजी ऑफ द कैंसर, इम्यून सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा पोर्शन ये डिस्कस करना जरूरी है। व्हाट आर द सम टाइप्स ऑफ द कैंसर स्क्रीनिंग। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि व्हाट इज पैप स्मीयर, नॉर्मल पैप स्मीयर और एबनॉर्मल पैप स्मीयर में डिफरेंशिएट आप देख सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होता है तो मैमोग्राम करते हैं, एंड प्रोस्टेट एंड ओवरियन कैंसर स्क्रीनिंग जब होता है तो ब्लड टेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग करना है तो वी आर यूजिंग द कोलोनोस्कोपी, इज अगेन अ मेथड। नाउ व्हाट इज द कैंसर स्टैटिस्टिक्स, अगर आप डेथ देखोगे तो सेकंड नंबर पे कैंसर है। हार्ट डिजीज देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे है। तो ये ग्राफ है जो आपको दिखाता है कि सेकंड हाईएस्ट डेथ जो वर्ल्ड में होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ड्यू टू द कैंसर, एंड फर्स्ट नंबर पे हार्ट डिजीज है। जब कैंसर का टेस्ट कराते हैं तो देयर इज अ टेस्ट दैट इज कॉल्ड बायोप्सी, एंड हाउ बायोप्सी इज एनालाइज्ड, ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा इसे पोर्शन रखा है, फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है। बट क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कैंसर सेल्स, सो एक दो लाइन ये बात हम कर लेते हैं, एक दो पीपीटी है इसके बारे में। व्हाट इज बायोप्सी एंड हाउ द बायोप्सी एनालाइज। तो बायोप्सी इज अ प्रोसीजर टू रिमूव अ पीस ऑफ टिश्यू और अ सैंपल ऑफ द सेल फ्रॉम योर बॉडी। आपके बॉडी में से टिश्यू या सैंपल, टिश्यू का सैंपल लेते हैं वो, so that it can be analyzed into the laboratory. बायोप्सी आपने सुना होगा कि बायोप्सी करते हैं, मतलब दे हैव टेकन अ पीस ऑफ योर टिश्यूज एंड देन एनालाइज्ड इट। तो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सर्टेन साइन एंड सिम्टम ऑफ कैंसर, so it is advisable if your doctor have identified an area of the concern, you may undergo a biopsy to determine whether you have a cancer or some other condition. What does a pathologist look for the examining biopsy tissues? अगर आप नॉर्मल टिश्यूज और कैंसरस टिश्यूज के बीच में डिफरेंशिएशन देखोगे तो लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटी आपको दिखेगी शेप के अंदर, शेप डिवाइडिंग सेल्स में। उसके बाद उसके लार्ज वेरिएबिलिटी दिखेगी उसके न्यूक्लियाई में, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रिलेटिव टू द न्यूक्लियाई, वेरिएशन इनटू द सेल साइज एंड शेप, लॉस ऑफ द नॉर्मल स्पेशलाइज्ड एंड सेल फीचर्स, disorganized arrangement of the cell and poorly defined tumor boundaries होते हैं। तो अगर आप पैथोलॉजिस्ट, what does a pathologist look for? He examine biopsy tissues with a microscope. So आप differentiate देख सकते हो normal cell hyperplasia या फिर mild dysplasia या फिर severe dysplasia, और कैंसर सेल में डिफरेंस आप देख सकते हो, that is invasive होता है कैंसर सेल। How do you know if you have genes that make getting cancer more likely? ये एक पोर्शन है कि कैसे आप जेनेटिक लेवल पे टेस्ट कैसे करते होंगे। अगर सिंप्लीफाइड वे में, ये बड़ा टॉपिक है बट सिंप्लीफाइड वे में जो नॉन साइंटिफिक लोग भी हैं वो भी समझ सकते हैं, सिंपल समझो, या फिर जो स्टूडेंट है स्कूल के वो भी समझ सकते हैं, सिंपल समझो। वी हैव आइसोलेटेड योर डीएनए आइसोलेट किया एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करके उसके स्मॉलर सेगमेंट कर देते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम विद एन एबिलिटी टू कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकाई, एक स्पेशल लोकाई पे जाके उसको कट करता है। तो डीएनए सैंपल होल्ड, डीएनए आइसोलेट करो एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करो, एंड दिस डीएनए सेगमेंट आर नाउ लोडेड इनटू द बेल। मतलब आपको अगर वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है तो
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू द चैम्बर, सो द डीएनए फ्रैगमेंट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज कैथोड. सो जो स्मॉलर डीएनए सेगमेंट होगा वो फास्टर मूव करेगा रादर देन द लार्ज सेगमेंट. इसका आप एक कर सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू द स्पेशल फ्रैगमेंट ऑफ दैट जीन विच हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ द कैंसर, वो फ्रैगमेंट में इंटरेस्टेड हो, सो यू हैव टू कट दैट फ्रैगमेंट एंड देन एम्पलीफाई विद द पीसीआर एंड देन यू हैव टू रन विद द इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये भी आप कर सकते हो. व्हाट हैपेंस टू द जीन दैट कॉज कैंसर, मतलब जीन लेवल पे मैं सेकंड स्लाइड आपको दिखाता हूं कि व्हाट हैपेंस टू द जीन दैट कॉज कैंसर, मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके जीन्स के अंदर जब कोई म्यूटाजेन या आइदर इट इज अ इंटरकैलेटिक एजेंट और अल्काइलेटिंग एजेंट और डीएमिनेटिंग एजेंट और सम बेस एनालॉग इंटरकैलेट करता है, या फिर समटाइम्स अगर कोई फिजिकल जैसे यूवी रेडिएशन अगर करता है तो कैसे चेंज होता है. अगर इसके ऊपर थोड़ा सा टॉक करें तो आप इतना समझो, सिंपल इतना समझो कि जब भी कोई म्यूटेशन कॉज करता है, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन होते हैं. मे भी सपोज करो कि सिंगल बेस चेंजेस कर दिया, सिंगल बेस चेंजेस हो गया, तो आइदर एडिशन हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, या डिलीशन हो सकता है, कोई न्यूक्लियोटाइड कहीं से रिमूव हो गया है, या फिर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकता है कि किसी बेस का सब्स्टिट्यूशन हो गया बाय द एनालॉग बेसिस व्हिच इज प्रेजेंट. दिस विल क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ म्यूटेशन. अब म्यूटेशन समझो कैसा होता है. कभी कभी क्या होता है, साइलेंट टाइप का म्यूटेशन है. अगर ऐसा म्यूटेशन है जो साइलेंट है, व्हाई? बिकॉज द डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड. डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मतलब फॉर a single amino acid more than one codons are available. So this is called degeneracy of genetic code. Due to the degeneracy of genetic code, अगर सपोज करो कि एक कोडोन के अंदर म्यूटेशन हो गया, कोई अमाइनो एसिड वो बनाता था और दूसरा कोडोन फिर से अवेलेबल है जो सेम अमाइनो एसिड बनाता है, सो म्यूटेशन हुआ बट इट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन साइलेंट है जो आपको पता नहीं पड़ रहा. तो सिमिलरली मिससेंस म्यूटेशन होता है, सिमिलरली नॉनसेंस म्यूटेशन होता है. अगर आपका जेनेटिक कोड स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो जाए, मिससेंस म्यूटेशन दैट इज अमाइनो एसिड प्रोडक्ट चेंज हो जाए. सो अलग अलग टाइप के म्यूटेशन के लेवल पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट सच टाइप ऑफ म्यूटेशन may leads to create a cancer because they have created a dysformality inside the cell. They have created the malfunction in the cell. जो प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड बनता था, डिफरेंट अमाइनो एसिड बनता है. It may be a toxic, it may be a carcinogen. So they have changed the functionality of the cell, and that's why they may be a cause of the cancer. सिमिलरली अगर आप यूवी रेडिएशन पे देखो, यूवी रेडिएशन का फंक्शन करता है. यूवी रेडिएशन दैट फॉर्म अ टीटी डाइमर. दो एडजेसेंट पायरिमिडीन के बीच में एक डाइमर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड टीटी डाइमर. इवन आप कैंसर समझो, हर सेल के पास अपना एक रिपेयर मैकेनिज्म है. जैसे आप डायरेक्ट रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन कर सकता है. अगर कोई न्यूक्लियोटाइड म्यूटेट हो गया तो उसको रिमूव कर सकता है. कोई बेस म्यूटेट हुआ है उसको रिमूव कर सकता है. अगर कोई सिंगल सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ है उसको रिपेयर कर सकता है. एसओएस कर सकता है. अगर एकदम सब कुछ काम नहीं कर रहा हो तो लास्ट में एसओएस रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड सेव आवर सोल. लक्स जीन एंड रेक जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म. हर सेल के पास अगर कोई म्यूटेशन क्रिएट हुआ है तो म्यूटेशन को रिवर्ट करने का एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म है. इवन अगर सेल का रिपेयर मैकेनिज्म काम नहीं करता है, then they become malfunction, and then that will create a damage inside their DNA. And when they create a damage inside the DNA, they will create a damage at the protein level because transcription change हो जाएगा, translation machinery change, translation process change होगा, the protein, the product form होना है वो change हो जाएगा, and that leads to the you can say cancer. How do mutation in oncogenes? Oncogenes के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है. Oncogenes है क्या? Almost if you take almost anything that can alter the genetic material or of a eukaryotic cell that has potential to make a normal cell cancerous. These cancer causing alteration to the cellular DNA that affect the parts of the genome is called oncogene. जो सेलुलर डीएनए के अंदर जो ऑल्ट्रेशन कॉज करता है, that cancer causing alteration to the cellular DNA that affect the parts of genome called
oncogenes. Oncogenes can be activated by the abnormal functioning. कोई भी abnormal function हो सकता है, जैसे कोई वायरस अफेक्ट कर देता हो तब भी, या फिर कोई हाई एनर्जी रेडिएशन, या फिर कोई म्यूटाजेनिक केमिकल म्यूटाजेंस के हिसाब से भी ये हो सकता है, इंड्यूस या एक्टिवेटेड हो सकता है. अप्रोक्सीमेटली ऑन्कोजीन के बारे में डिस्कस करें तो क्लाइन बोलना जरूरी है. अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द कैंसर आर नोन टू बी वायरस इंड्यूस्ड. जैसे मैंने पहले बताया कि वायरस दुनिया का सबसे चालाक और खतरनाक सजीव है, लिविंग सिस्टम है, which can modify their DNA before inserting their DNA inside your eukaryotic cell. So approximately 10% of the cancer are known to be induced by the virus. दूसरा, जैसे मैंने उसके बारे में बात किया था, जब वायरस इंडक्शन कर देता है, इंसर्ट हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, दे कॉज अ deformality inside the tissues. So they create a tumor cell, and the tumor cell that undergo into the transformation change हो जाता है. That is acquired the properties, you can say, that are distinct from the properties of the infected cells. उसके अलग दिखता है. But after being transformed by the virus, many tumor cells that contain a virus specific antigen, समझो, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, so after being transformed by the virus, many tumor cell के ऊपर एक वायरस स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस आपको देखने को मिलेगा, and that is called tumor specific transplantation antigen. ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, उसको TSTA कहते हैं, और द एंटीजन इन देयर न्यूक्लियस, समटाइम्स दे आर कॉल्ड T एंटीजन. तो द ऑन्कोजीन्स प्लेइंग मेजर रोल. म्यूटेशन अगर ऑन्कोजीन में हो जावे, that directly lead to the cancer. What is the cancer prevention? How to prevent cancer? 7 कैंसर प्रिवेंशन है. मैं एक एक करके बात करता हूँ. प्रिवेंशन है क्या? प्रिवेंशन के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि when we are talking about awareness, so the prevention is defined as the reduction of the cancer mortality via the reduction in the incidence of cancer. कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन? Avoiding carcinogens, that is cancer causing, that agent that create alteration in your metabolism. Pursuing lifestyle or the dietary practices, खान पीन lifestyle बदल सकते that modify the cancer causing factors of the genetic level. That is medical intervention or risk reducing surgical procedure. Early detection strategy that can result in the removal of the, you can say, pre-cancerous lesions such as colonoscopy करके, या फिर colorectal polyp करके. It is estimated that 50% of the cancer is preventable. 50% कैंसर को रोका जा सकता है. 50% तक केसेस में ऐसा देखने को मिला है. And the International Agency for Research on the Cancer, IARC, has identified and tabulated over 100 human carcinogens are available जो कैंसर कॉज करते हैं. तो हम प्रिवेंशन ले सकते हैं. लाइफस्टाइल फैक्टर, हम एक एक करके सारा फैक्टर डिस्कस करेंगे. 7 फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर that have been linked to a variety of malignancies, including the most common in the developed world. लंग, जैसे प्रोस्टेट, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हो सकते हैं. In a longitudinal study, अगर आप देखें कि participant who had all 4 lifestyle factors, जैसे कभी स्मोकिंग नहीं करता हो, जिसका बॉडी मास less than 30 हो, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी 3.5 आवर 3.5 घंटे वीकली हो, प्रूडेंट डाइट लेता हो, हाई इंटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन ब्रेड एंड लो मीट कंजम्पशन करता हो, had approximately 1/3 risk of the cancer compared to those who had not these factors. So ऐसे लोग बहुत कम रिस्क पे होते हैं. रिस्क फैक्टर ऑफ द कैंसर, एज इज ऑल्सो अ फैक्टर. अगर नीचे का आप ग्राफ देख रहे हो, मेल में जनरली 70 या 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को 31.9% केसेस में कैंसर होते हैं. फीमेल में भी सेम है, दैट इज 70, और एज प्रोफाइल सेम है, दैट इज 26% फीमेल को होते हैं. तो रिस्क फैक्टर ऑफ द कैंसर एज हो सकता है. अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हो सकते हैं. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस एंड स्वेलिंग, उसको आप कहते हैं. एरिथीमा एंड एडिमा इज inside your cell, inside your tissues, inside your body parts. Diet is also a proper concern. Hormones, overproduction of hormones
is also the risk factor of the cancer. Immunosuppression, ये सबसे important है, that is suppressed immune system. Infectious agents like bacteria and virus, obesity, मोटापा, radiations, UV radiation type या X-ray radiation, sunlight, tobacco, जो लोग tobacco use करते हैं is also at the risk factor for the cancer. Prevention tips, हम एक एक करके बात करें. tobacco, please. कभी भी आप तंबाकू का सेवन ना करें. तंबाकू और गुटखा खाने की सख्त मनाही है, बिकॉज इज द प्रिमिटिव कॉज. सबसे ज्यादा लोगों को होता है जो तंबाकू या गुटखा सेवन करते हैं या फिर जो अल्कोहल सेवन करते हैं. तो नेवर. प्रिवेंशन टिप्स है, फर्स्ट, डोंट यूज टोबैको. यूजिंग एनी टाइप ऑफ टोबैको पुट्स यू ऑन द कोलिजन कोर्स विद द कैंसर. स्मोकिंग has been linked to the various types of cancer. स्मोकिंग से ज्यादा कितने टाइप के कैंसर हो सकते हैं? दैट इज कैंसर ऑफ लंग, माउथ, थ्रोट, लैरिंक्स, पेनक्रियाज, ब्लैडर, सर्विक्स, किडनी. सो इट इज रिक्वेस्ट टू ईच वन, जो मुझे सुन रहे हैं या जो नहीं भी सुन रहे हैं, जिस तक जैसे भी ये बात पहुंच रही हो, अवॉइड टेकिंग टोबैको, अवॉइड स्मोकिंग. it is request to all of you. Is the first prevention tips. Don't use tobacco. Eat a healthy diet. So making healthy selection at the grocery store and at you can say it will guarantee you, it might guarantee you the cancer prevention, but it might reduce your risk to the cancer. Cancer ठीक नहीं कर देगा, but आप risk पे कम रहेंगे. Consider these guidelines. Plenty of the fruits and vegetable आपको consume करना है. Avoid obesity, आपको रोज एक्सरसाइज करना है. If you chose to drink alcohol, so do so only in the moderation. मतलब either ना अल्कोहल का सेवन नहीं करें या कम मात्रा में करें. Limit processed meat, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मैंने इसलिए इसको रेड किया है कि रिपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द रिसर्च ऑन द कैंसर एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट कंक्लूडेड, ये लाइन सुनना आप, eating large amount of the processed meat can slightly increase the risk of a certain type of cancer. Certain types of preventive measures जब ले रहे हैं तो कुछ foods की बात करते हैं, how they working to prevent from the cancer. जैसे broccoli that contains sulforaphane is a compound, metabolites. A plant compound, sulforaphane is a plant metabolite compound that found into the cruciferous vegetable that may have potent anti-cancer properties. And ऐसा report suggest करता है कि the sulforaphane is reduced the size and the number of the breast cancer up to 75%. So it is also a preventive measure. You can use this. Carrot. Second, several studies have found that eating more carrots is linked to the decreased risk of certain type of cancer. जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो आप, the analysis looked at the result of the 5 studies. 5 studies में ऐसा देखा गया, concluded that eating carrots may reduce the risk of stomach cancer up to 26%. एक स्टडी तो ऐसा कहता है कि 1266 पार्टिसिपेंट पे स्टडी हुआ डाइट का, एंड विथ और विदाउट लंग कैंसर, एंड इट फाउंड that the current smokers who did not eat carrots were 3 times as likely to develop lung cancer compared to those who ate carrot more than once per week. The third, yes. Any problem? I'm audible? No, sir. No problem, sir. Should I continue? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay. Third, we are talking about berries. They are also high in anthocyanins. That is the plant pigment that have antioxidant properties and may be associated with the reduced risk of cancer. आपके दिमाग में जैसे ही आपने सुना ये anthocyanin is a plant pigment और आपको ऐसा सुनने में आया that is antioxidant properties, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा अगर आप स्टूडेंट हैं कि what is antioxidant, क्या है एंटीऑक्सीडेंट. ये हमेशा कैंसर के टाइम पे यूज होता है कि अरे ये खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये कैंसर के रिस्क को डिक्रीज करता है. तो व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली द सब्सटेंस दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डाउन, सुनना, दैट कैन प्रिवेंट और स्लो डाउन द डैमेजेस टू द सेल दैट इज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल्स. तो फ्री रेडिकल्स डैमेज कॉज करता है उसको या तो प्रिवेंट करता है या फिर स्लो डाउन कर देता है.
that is unstable molecule that body produces on a certain environmental or other pressure के चलते free radicals produce होते हैं. अब किसी को ये भी question आ जाएगा what is free radicals? तो एंटी कैंसर्स आर फ्री रेडिकल्स. अगर जानना हो तो मैं वो बताता हूँ. फ्री रेडिकल्स कैन बी डिफाइंड एज एनी मॉलिक्यूल्स दैट स्पीसीज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दैट कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल. हाईली रिएक्टिव होते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है. दैट फ्री रेडिकल्स एडवर्सली यू कैन से ऑल्टर योर लिपिड, योर प्रोटीन, डीएनए एंड ट्रिगर नंबर ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस. सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड even cancer cause karta hai that free radicals. So antioxidant having ability to prevent and slow down the damages created by the free radicals. So antioxidant को आप कह सकते हैं free radical scavenger है. So free radical scavenger है. बहुत सारे antioxidant synthetic भी available है, जैसे butylated hydroxy toluene है, butylated hydroxy anisole है. ये सब antioxidant है जो synthetic है, but they also create a damage to your human health. So it is better to use such antioxidant which is naturally available, like anthocyanin. और भी मैं बताता हूँ. So beans are also are high in fiber, which sometimes some studies also found that may help protect against the colorectal cancer. Beans are also help because of the presence of the fiber. Cinnamon. Cinnamon is well known for its health benefit, including the ability to reduce blood sugar. ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में एंड इन्फ्लेमेशन को कम करने में सिनेमोन सबसे ज्यादा यूज होता है. तो ये भी एक प्रिवेंटिव हो सकता है एज अ फूड पार्ट के हिसाब से. नट्स रिसर्च कहता है कि ईटिंग नट्स मे बी लिंक टू अ लोअर रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर. जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कि 2-3 एग्जांपल लिखा है कि जैसे ब्राजीलियन नट्स है. This Brazil nuts have high amount of selenium, which may help protect against the lung cancer in those which have the low selenium status. So nuts can also be used. Olive oil is also important part because studies shows that the higher intake of the olive oil may be associated with the reduced risk of certain type of cancer. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज स्टडी सोच करता है कि ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल कंटेन एंटीऑक्सीडेंट इन द एबंडेंस. मैंने एंटीऑक्सीडेंट की बात की. कौन कौन सा? जैसे एसिटोसाइड्स, हाइड्रोक्सी टाइरोसोल, फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड्स. दीज आर अवेलेबल इनसाइड द ऑलिव ऑयल व्हिच में रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर. टर्मरिक, हल्दी आपके घर में होता है, दैट कंटेन्स curcumin, that is a chemical that has slowed down, or you can say slow to reduce the growth of many types of cancer and lesions in the human study ऐसा suggest करता है. Citrus fruit that has such as lemon, limes, grapefruits and orange that have been associated with the lower risk of the cancer in some studies. So a review, if you say 9 studies are also found that greater intake of the citrus fruit was linked to the reducing risk of the pancreatic cancer. क्यों ऐसा है? बिकॉज सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे 2 फ्लेवोनॉइड्स होते हैं किसी भी सिट्रस फ्रूट के अंदर. एक को बोलते हैं नोबिलेटिन एंड दूसरा होता है एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज कॉल्ड विटामिन सी. एंड दिस फ्लेवोनॉइड्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड सिट्रस फ्रूट आर इन एंटी एंजियोजेनिक इन नेचर होते हैं. एंटी एंजियोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. अब ये एंटी एंजियोजेनिक क्या होता है? द एबिलिटी टू रिड्यूस द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द ब्लड वेसल्स. आप समझो, एंजियोजेनेसिस दैट इज द अप्रोच टू ट्रीट द कैंसर that represent the priority area into the vascular tumor biology. So the flavonoids which are present into the citrus fruit that play an important role to reduce the risk of the cancer. Flaxseed also important है. Some studies have been found that flaxseed may reduce cancer growth in the breast and prostate cancer. रिस्क को कम करता है ड्यू टू फ्लैक्सीड में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, और ऑल्सो एंटी कैंसर्स कंपाउंड जैसे लिग्नान्स होता है उसके अंदर, एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर. फ्लैक्सीड की तो एक और खासियत है, इट ऑल्सो लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल. So flaxseed may also helpful in the reducing your risks to the heart disease also. Heart disease में भी help करता है. Breast cancer and endometrial cancer में भी help करता है. Tomatoes, due to the presence of lycopene, is a compound that found in the tomatoes that is responsible for its vibrant red color as well as its anti-cancer properties. Garlic also contains allicin, a compound that has been shown to kill the cancer cell
बहुत सारे स्टडीज ऐसा कहते हैं कि बताते हैं कि एलिसिन इज अ कंपाउंड मेटाबोलाइट व्हिच इज प्रोड्यूस इनसाइड द गार्लिक एंड किल द कैंसर सेल. फैटी फिश, that is the fish consumption may also decrease the risk of the cancer because the vitamin D and omega-3 fatty acid present, these two nutrients that are believed to be protect against the cancer which is present inside the fatty fish. So these are summarized there. Now maintain a healthy weight and be physically active. It is necessary कि आप weight maintain रखें और exercise करते रहें. Adults who participate in any amount of physical activity gain some health benefit, but for the substantial health benefit, strive to get at least 150 minutes a week of the moderate aerobic activity or 75 minutes a week of the vigorous aerobic activity. You can also do a combination of moderate and vigorous activity both. So as a general goal, include at least 30 minutes of physical activity. कम से कम 30 मिनट रोज एक्सरसाइज आप करें. This will maintain your physical activity and reduce the risk of the cancer. Preventive measures की बात कर रहे थे. Protect yourself from the sun. That about avoid midday sun. मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ. That is ये आप देखो सन स्मार्ट टिप है. That अगर आप देखोगे सन स्मार्ट टाइम देखो 10 AM to 2 PM इसके बीच में सबसे ज्यादा यूवी रेडिएशन के यूवी रेडिएशन की डेंसिटी होती है. So it's better to avoid midday sun and stay in the shade, cover exposed areas. You can also avoid tanning beds and sun lamps. Get vaccinated. Cancer prevention include the protection from the certain viral infection. Talk to your doctor about the vaccination against कम से कम 2 तो जरूरी है. That is hepatitis B and human papilloma virus. Human papilloma virus जैसे मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, a sexually transmitted virus that can be lead to a cervical and other genital cancer as well as squamous cell, scaly cells cancer of the head and neck create होता है. And human papilloma virus vaccine is recommended for girls and boys at the age 11 से 12 एज के बीच में ये recommend किया आता है. And hepatitis B की बात करो, hepatitis B that can increase the risk of the developing liver cancer. The hepatitis V vaccine is recommended for the certain adults at the high risk, such as adults who are sexually active but not in a mutual, completely monogamous relationship में जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए खास जरूरी है. So men who have sex with a man or healthcare and public safety workers who might be exposed to the infected blood or body fluids, उनके लिए hepatitis V का vaccination is compulsory है. So vaccines, it is important that save lives and promote good health. It's vital that everyone eligible gets vaccinated. 6% that avoid risky behavior. That means practice safe. Limit your number of sexual partners. It is important. The more sexual partner you have in your lifetime, the more likely you are to be contact sexually transmitted infections such as HIV and HIV. So people who have HIV and AIDS have a higher risk of cancer of anus, lung and cancer. जिन लोगों को HIV and HPV है, infected है, AIDS, HIV से infected है, they are at the higher risk of the cancer, liver and lung. Don't share needles. Sharing needles with the people who use intravenous drugs can lead to be HIV. So it is better don't share needle. Last one, get regular medical care. Regular self-exams and screening for the various types of cancer, such as cancer of the skin, colon and cervix and the breast. It can increase your chances of the discovering cancer early. So when treatment is most likely to be successful, ask your doctor about the best cancer screening schedule for you. So regular medical care, it can also be a preventive measure. These are references I have used for making this slide. Thank you very much. If anybody having any question, you can arise, please. Thank you so much, sir. Such an informative session, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for giving me chance to talk जी sir. with the large number of people. Yes sir. Yes sir. Very good sir. Very informative, wonderful session sir. सर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने रिसीव किए हैं ऑनलाइन सर. तो उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है सर कि केमोथेरापी कैंसर के लिए फायदे कारक है या नुकसान कारक है? बिल्कुल फायदे कारक है. नुकसान कारक अगर एकदम थर्ड स्टेज पे पहुंच गया है तब नुकसान कारक हो सकता है, बट जनरली केमोथेरेपी इज द बेस्ट मेथड और चीप है, इंडिया में बेहतर तरीके से होता भी.
So is a better method. ओके और फायदे सर का। हाँ सर, उसके बाद ऐसा पूछते हैं कि केमोथेरापी के बाद में जो कैंसर का जो इलाज होता है उसका ट्रीटमेंट, तो उसके बाद में कैंसर पूरी तरह से नाबूद हो जाता है या फिर से होता है? नहीं, इन फ्यू केसेस पूरी तरह से नाबूद तो हो ही जाता है, बट इन फ्यू केसेस यस जब केमोथेरेपी में देयर इज चांस ऑफ गेटिंग म्यूटेट सेल, ट्यू सेल म्यूटेटेड, चांस है कि समटाइम्स कुछ सेल म्यूटेट हो जाए। अगर वो म्यूटेशन लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोजर में रहेगा या सस्टेन करेगा, देन इट अगेन चांस टू बी सेकेंड टाइम कैंसर हो सकता है। बट जनरल केसेस में चांसेस नहीं होते। बट किसी भी काम से, जैसे सिंपल मैंने जैसे बात किया यूवी रेडिएशन के बारे में, अगर कोई रेडिएशन यूज करके या कोई केमिकल यूज करके आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो अगर वो केमिकल, अगर आपका अगर आप इम्यूनोसप्रेसिव पर्सन है, तो अगर उसने आपके जीन लेवल पे अगर उसने कोई क्रिएशन कर दिया या म्यूटेशन क्रिएट कर दिया, म्यूटेशन या मिसेंस म्यूटेशन क्रिएट कर दिया, सो लॉन्ग टाइम के मिसेंस म्यूटेशन आप समझो कि म्यूटेशन हुआ है तो जो प्रोडक्ट बन रहा था वो चेंज हो जाएगा, वो तुरंत पता पड़ जाता है, तो उसका इलाज आप तुरंत कर सकते हैं केमोथेरेपी के बाद। लेकिन इफ इट विल क्रिएट अ साइलेंट म्यूटेशन, वो आपको पता नहीं पड़ता है। तो साइलेंट म्यूटेशन अगर प्रोलॉन्ग टाइम में, लंबे समय तक अगर प्रिवेल करता है, तो वेरी फ्यू केसेस में चांसेस हैं कि फिर से कैंसर हो सकता है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट? हाँ, जैसा कि मैंने पीछे बात किया था ट्रीटमेंट के लिए कि जेनेटिक मेथड से आजकल हो रहा है कैंसर का इलाज, और दूसरा सबसे बेस्ट मेथड तो केमोथेरेपी सबसे ज्यादा है, चीप है इसलिए, बट जेनेटिक मेथड में भी अ वेरी यूजफुल ट्रीटमेंट। अभी अगर इस बार का कुछ लोगों ने नोबेल प्राइज देखा होगा केमिस्ट्री में, जी सर, क्रिस्पर कैस के लिए नोबेल प्राइज मिला है। दैट मीन्स जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है, तो जेनेटिक लेवल पे जो ट्रीटमेंट है वो फिजिबल हो सकती है। ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो एक दूसरा लेक्चर भी रख सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर काफी लंबी बात हो सकती है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या डिप्रेशन की वजह से कैंसर हो सकता है सर? ऑफ कोर्स, मैंने अभी जब फ्री रेडिकल्स की बात की थी, दैट ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो डिप्रेशन के टाइम पे जब आप स्ट्रेस होते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है मतलब हार्मोनल ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यस सर। और ड्यू टू आइदर ओवर प्रोडक्शन होगा या रिड्यूस प्रोडक्शन हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में देयर इज अ चांस ऑफ द डिसफॉर्मुलेटिव, मतलब मेटाबोलाइट डिस्टोर्शन हो जाता है। जितना मेटाबोलाइट आपको चाहिए उससे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, या जितना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन होता है। दे मे क्रिएट अ डिसफॉर्मुलिटी इनटू द सेल और टिश्यूज। तो जैसे ही डिसफॉर्मुलिटी क्रिएट होगा देयर इज अ चांसेस। इसलिए मैंने पहले प्रिकॉशन में बताया प्रिवेंशन में कि आप पहले तो खुश रहो, सो स्ट्रेस जैसे क्रिएट होगा देयर मे बी अ चांस ऑफ कैंसर। Sir, next question is boiled tumor can cause a cancer? Which Boiled tumor. the benign tumor. It's a type. Benign tumor doesn't cause a cancer. Okay, sir. But if it change into the malignant, it may can cause cancer. Yes sir, yes sir. और सर लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि डायबिटीज का कोई ये प्रॉब्लम है किसी को, तो उसको कैंसर की चांसेस होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ हाँ बिल्कुल होती है। जो डायबिटिक पर्सन है उनके कैंसर के हाई रिस्क पे होते हैं। अगर मैं अभी उसका मैकेनिज्म के बारे में, उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, कैसे डीएनए चेंज होता है उसके बारे में बात करूं, तो आप समझिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं दैट देयर मेटाबॉलिक पाथवे इज, मतलब समझो उसके अंदर इंक्रीज शुगर कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनी हार्मोन्स एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनी मेटाबोलाइट्स इनसाइड योर बॉडी कैन क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। दैट्स व्हाई डायबिटिक पर्संस होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं कैंसर। यस सर। So sir, today we conclude our session, sir. Thank you so much, sir. Such a informative, wonderful session, sir. And lots of people we interact with us, sir. Thank you so much, sir, on behalf of Gujarat Science City, sir. Thank you all participants for attending the session. Thank you once again. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, sir.
wanna see what you see. Wanna hear from your heart. We're in this thing together. Together we'll be